जो लास्ट वाली वर्कशीट थी, लास्ट वीक वाली, वो भी, और आज वाली करंट वर्कशीट दोनों निकाल लो. टेक आउट योर वर्कशीट्स एंड one notebook and pen pencil with you. Only these things should be on your table, nothing else. इसके अलावा आपके डेस्क पे और कुछ नहीं होना चाहिए. These two worksheets, notebook and pen pencil. ठीक है, nothing else. इसके अलावा कुछ भी आपके डेस्क पे नहीं होना चाहिए. ठीक है. So all are ready with their stuff? Yes? Yes. Okay, so we are going to start from where we left. पहले हम उसको पढ़ेंगे जो हमने छोड़ा था last time. So till question 6 we have done. Okay, now moving to the question number 7. Question number 7. And for this, I would like to call from 7th A, Gitika Rani. Gitika Rani from 7th A. Ma'am, go on for practice. Pranav. Pranav is there? Ma'am, yes. Ma'am, yes. Yes. Ma'am, yes. So question number 7 is showing what, beta? Which option is right? Ma'am, C option. C option, that's right. So what is happening in this? Ma'am, nail. Ma'am, a nail is put in the vehicle. Ma'am, You go there in the last. I think there is some confusion, beta, in this reaction. I think so. What I can say. Last time reactions किए थे. We have done reaction in the last class. तो C option को everyone change it. पहले होगा कॉपर सल्फेट. It's copper sulfate. उसमें हमने आयरन नेल डाला. This is the iron nail. इसको चेंज करो ऑप्शन 3 को. ठीक है. It's copper sulfate solution that is blue in color. Of the light. It's copper sulfate solution, and in this what we did, we put this iron nail. हमने लोहे की कील इसके अंदर डाली. ठीक है. आयरन नेल इसके अंदर डाला. So what happened? Copper sulfate that is blue in color. Boys. Those two boys. Blue in color. After some times, what we notice that the solution color changes from blue. जो भी blue था यहाँ पर, इसका color it's changed into this color. And why it is changed to this color? Because now copper sulfate का copper iron ने हटा के खुद यहाँ पर आ गया है. ठीक है. तो उसकी वजह से रिएक्शन में क्या हो जाएगा? इट बिकम्स आयरन सल्फेट. आयरन सल्फेट एंड कॉपर विल रिलीज फ्रॉम हियर. ठीक है. सो इट इज अ रिएक्शन. नोट डाउन. नोट डाउन बेटा. So now next move with the next question, 8th question. Moving to the 8th question. Everyone, pay attention here बेटा. Question number 8. ठीक है. 8th number question अब हम देखते हैं. Match the following, and for this B section से Gurkiran call from B section. Yes बेटा. So हमने लास्ट टाइम इन सबके केमिकल्स नेम किए थे. वी ऑलरेडी डिड दिस इन द लास्ट क्लास. ठीक है. And everyone, you should have remembered this. Baking soda and vinegar. ठीक है. लाइम वाटर को और क्या कहते हैं? क्या कह सकते हैं इनमें से? Ma'am, option second, CaOH2. Yes, so that is calcium hydroxide. It is also called, अगर इसको हम साइंटिफिक नेम में दूसरी तरह से बोले, कैल्शियम, और OH ग्रुप इज कॉल्ड हाइड्रोक्साइड. सो इट्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है बेटा.
नेक्स्ट रस्ट इज क्या होगा? मैम ऑप्शन फोर्थ। ऑप्शन 4 आयरन ऑक्साइड, क्योंकि ऑक्सीजन लगा है तो हम इसको ऑक्साइड कहेंगे सिर्फ। नाउ कमिंग टू बेकिंग सोडा, मैम ऑप्शन फर्स्ट। ऑप्शन फर्स्ट दैट इज सोडियम बाई मतलब H कार्बोनेट, CO3 इज कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। विनेगर ऑप्शन थर्ड। दैट इज एसिटिक एसिड, इसको हम एसिटिक एसिड भी कहते हैं। तो एवरीवन मार्क इट, सब इसको ऐसे करो, दैट्स गुड बेटा, वेल डन। यस एवरीवन डू इट। सब इसको नोट करो, एवरीवन नोट डाउन दिस। I'm done. Okay. So coming to the ninth question. Coming to the question number 9. Okay, coming to the question number 9. Step 1. So here we have two steps. Okay. In first step, what is happening? 2 drops of dilute sulfuric acid. Dilute sulfuric acid were added to a 1 gram of, इसमें डाल दिया हमने इसको 1 gram of copper sulfate. Okay, 1 gram of copper sulfate. ठीक है? Then small amount of hot water was added to dissolve it. फिर इसमें हमने hot water भी डाल दिया थोड़ा सा ताकि ये dissolve हो जाए. ठीक है? So this happened in the first step. On cooling, now in the second step, let's move to the step 2. On cooling, beautiful blue colored crystals got separated. Step 1 and step 2 are what? So second step में क्या हुआ? अभी ये ऐसे थे powder form में, it is in powder form. Now in the second step what happens? Now these are like this. Small crystal form में ये separate होंगे. Like this. दाने दाने, जिसको हम कह सकते हैं दाने की फॉर्म में easily separate हो. So in first step, what is happening? Reaction is happening, yes? Reaction हो रहा है? Yes or no? Yes. अब जब reaction होता है तो वो chemical change होता है या physical change? Chemical change. So can we say first step is chemical change? Yes. And in the second, you can see only the appearance or texture change. पहले वो powder form में था, अब वो दाने दाने की form में. It is in the form of crystal. So is it physical change or chemical? Physical change. So based on this, which option is right? Both physical and Both physical and chemical change. अब इसमें तो सभी अच्छा both physical change and both chemical change. Option which one is right? Tell me the option. Which option will go? Yes, it's B. पहले क्या बोला उन्होंने? Chemical change, then physical change respectively. जब ये वर्ड लगता है ना रिस्पेक्टिवली लास्ट में, जब हम दो चीजें तीन चीजें कर रहे हैं तो इट इज टेलिंग द ऑर्डर कि जिस ऑर्डर में क्वेश्चन है, लाइक फर्स्ट क्या है? स्टेप 1, तो स्टेप 1 के साथ जाएगा केमिकल चेंज, देन स्टेप 2 फिजिकल चेंज रिस्पेक्टिवली, मतलब ये होता है जब हम ऐसे उसमें सेंटेंस में लगाते हैं. ठीक है? सो आंसर इज बी. 9th का आंसर है इट्स बी. ठीक है? कमिंग टू द 10th, अब ये जो क्रिस्टलाइजेशन है उसी से रिलेटेड दिस क्वेश्चन इज. ठीक है? क्रिस्टलाइजेशन से हमें मिलता क्या है? व्हाट वी गेट फ्रॉम द क्रिस्टलाइजेशन? व्हाट आर द प्रोडक्ट्स? हु कैन टेल मी द प्रोडक्ट्स दैट वी गेट फ्रॉम द क्रिस्टलाइजेशन? यस 7th है. Pure substance, crystallization, physical change. Yes, it's a physical change, that's right. But what we get? 3 इसमें 3 चीजें दे रखी है ना, 3 blanks are here. Salt and sugar. And one more, 3 है, salt, sugar, Alum. alum. That's right. और ये सब क्या है? These are
प्रोडक्ट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जो कि फिजिकल चेंज. इज इट राइट? Yes. That's right. Coming to reason assertion now. Assertion reason का first part is. So for this I'm going to call from B section Jashraj Kumar. Jashraj is there? Okay. So assertion is saying photosynthesis and digestion are chemical changes. Is it right? Yes. Yes, क्योंकि दोनों में जो चीज बन रही है वो वैसी नहीं होती जो स्टार्टिंग की होती है. इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट और हम उसको वापस ओरिजिनल स्टेट पे नहीं लाके दे सकते. जो हमने खाना अभी खाया है, अगर हम उसको जो है बाहर निकाले, इट इज नॉट इन द सेम फॉर्म, उसी फॉर्म में नहीं मिल पाएगा. सिमिलरली जो फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट्स ने क्या किया है, कैप्चर किया है कार्बन डाइऑक्साइड, टेक वाटर फ्रॉम द सॉइल and they mix it and they form glucose. They cannot क्या कर सकते हैं, ब्रेक डाउन नहीं कर सकते and get the raw materials. So it is right. Coming to next reason is what beta? True. It is also true. A chemical change is generally accompanied by evolution of a gas, change in color, shape or smell and formation of new substance. So that's right. That's what beta. Sit down. Now coming to second reason and assertion. And for this C section say Harleen Kaur. C section Harleen Kaur. Ma'am left the school. Anushka is there? Anushka. So assertion is melting of ice is a physical change. True. Yes, क्योंकि इसमें स्टेट चेंज हो रहा है ना, मेल्ट हो गया उसके बाद वापस फ्रीजर में रख दो, यू गेट बैक, है ना. सो इट्स ट्रू. नाउ रीजन. What is the reason? Melting is a physical change in which the state of water changes from solid to liquid without any chemical composition change. True. Yes, it's true. ठीक है, it is also true. Option A. That's good, beta. Sit down. That's good. That's good. Now coming to the last reason assertion, and for this A section is Dilkirat Kaur. I'm going for practice. I'm going for practice. Okay, then Sartaj is there. Yes. Ma'am, yes. That's your turn. Option A. Option A. Wait. हम इसको आराम से करेंगे. We are not coming directly into the option. हमें डिस्कस करना है. ठीक है? We are discussing. Coming to assertion. पहले assertion पे आते हैं. Now assertion is saying mixing salt and water is a chemical change. Is it a chemical change? Ma'am, yes. कोई नई चीज बनती है जब नमक और पानी को डालते हो, कुछ और ही नया बनता है क्या? जो नमक का टेस्ट पहले था वो चेंज वैसा नहीं रहता, या फिर पानी लिक्विड से कुछ और बनता है? कुछ और बनता है. बनता है कुछ और? नहीं बनता. अब नो. अब सुनो बेटा, इसका क्या रीजन है. सॉल्ट वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा. इट इज नॉट रिएक्टिंग विद वाटर, इट इज डिसॉल्विंग. डिसॉल्विंग मतलब घुल रहा है. जो वाटर के बीच में स्पेसिस है उसके अंदर वो जा रहा है. ठीक है? अगर हम कहें ये हमारे पास एक ग्लास है और इसमें पानी ऐसे दिखा रही हूँ मैं आपको. ओके, आई एम शोइंग यू वाटर लाइक दिस. ठीक है, दिस इज वाटर. इसको समझो. सपोज दिस इज वाटर. अब इसके बीच में स्पेस है. नाउ व्हाट सॉल्ट इज गोइंग टू डू, इवन द शुगर आल्सो. ठीक है, ध्यान से देखो. नाउ बिटवीन दीज स्पेसेस दे आर गोइंग टू एडजस्ट. इस ये जो जगह है इस पे जाके वो मिक्स होते हैं, या फिर आप कह लो जगह घेरते हैं. ठीक है? दिस इज हाउ, जो हम कहते हैं ना डिसॉल्व हो रहे हैं शुगर और सॉल्ट, हाउ दिस इज हाउ दे गेट डिसॉल्व. रिएक्शन में ऐसा नहीं होता. रिएक्शन में अगर कोई चीज रिएक्ट कर रही है विद वाटर, वो इसके साथ रिएक्ट करेगी और आपको ये ब्लू कलर का जो वाटर मॉलिक्यूल है ब्लू नहीं दिखेगा. इट विल चेंज इनटू समथिंग एल्स.
क्योंकि वाटर वाटर नहीं रहेगा, बट हियर यू कैन सी वाटर इज वाटर ओनली, यहाँ पे पानी पानी ही है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इट्स नॉट अ केमिकल चेंज, इट्स अ फिजिकल चेंज, ठीक है, इट्स अ फिजिकल चेंज एंड दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, assertion is false. Coming to reason, अब reason पढ़ो। So salt can be separated from water by evaporation. Can we do that? Yes. Yes. So you already learned in your class 6 also about this. ठीक है? So yes, we can get back this through evaporation. So it's a true. So this is all about our worksheet number 1. So that's good, beta. Sit down. Sit down. So अब हमारा जो है we have done this also. ठीक है? Okay. So now coming to the present worksheet. आज वाली जो आपके पास नई वाली वर्कशीट आ गई है ना? Yes. So before this, let me show you one thing. Why are you speaking? Harman Singh, stand up. Stand up. Get up. It is about soil formation. Okay, when we talk about soil formation, मतलब जो हमारे चारों तरफ हमें मिट्टी दिख रही है, वो बनी कैसे है? कैसे बनी है? अब आप बोलोगे हवा के साथ आ जाती है, मगर हवा के साथ आने के लिए पहले होनी भी तो चाहिए, है ना? हवा के साथ तभी कोई चीज आएगी जब वो होगी, अगर वो है ही नहीं तो कैसे आएगी? सो बेसिकली सॉइल फॉर्म फ्रॉम, अगर हम बात करें, इट्स फॉर्म फ्रॉम रॉक्स, ठीक है, रॉक से बनी है। कैसे? आप बोलोगे रॉक तो इतने मोटे मोटे इतने हार्ड होते हैं, है ना? तो कैसे बनी है? इट इज नॉट वेरी फास्ट प्रोसेस, इट इज नॉट वेरी इजी प्रोसेस, इट टेक्स टाइम, ठीक है, इसको टाइम लगता है। सबसे पहले जो बड़े बड़े रॉक्स हैं, ओके, वी से दिस इज अ रॉक, ठीक है, ये रॉक है, तो ये पहले इट विल ब्रेक इनटू स्टोन्स, ऐसे बड़े बड़े पत्थर में टूटेगा धीरे धीरे। अब ये टूटेगा क्यों? टूटेगा क्यों? रीजन इज इट कैन बी ड्यू टू अर्थक्वेक, इट कैन बी क्योंकि बार बार टेम्परेचर चेंज हो रहा है, कभी एकदम ठंड पड़ रही है, कभी एकदम गर्मी पड़ रही है, तो एक्सपेंशन हो रही है, कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, ठीक है, चीज जो है बड़ी हो रही है, कभी कम हो रही है। सर्दियां होंगी तो वो सिकुड़ेगी, अगर गर्मियां होगी तो एक्सपेंड करेगी, तो उसकी वजह से जो रॉक्स है उनके बीच में क्रैक्स आ जाएंगे, ठीक है, उसके बीच में आप जो क्रैक्स देखने को मिलेंगे, और जैसे ही बारिश होगी तो उस क्रैक्स में पानी जाएगा और वो ढीले पड़ जाएंगे, लूज होना शुरू हो जाएंगे, एंड उसकी वजह से पत्थर टूटना शुरू हो जाएंगे। गॉट इट? इज इट क्लियर? Yes. अब इसको हम कहते हैं दिस इज द फर्स्ट स्टेप जो सॉइल फॉर्मेशन है, ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स इनटू स्मॉल पीसेस। देन इसके अलावा जो हमारे सॉइल है उसके अंदर बहुत से मिनरल्स होते हैं। यू लर्न अबाउट मिनरल्स इन क्लास 6 इन कंपोनेंट्स ऑफ फूड, है ना? उसमें खाने वाले मिनरल्स आपने पढ़े हैं, वैसी और भी मिनरल्स हैं, ठीक है। सो दीज आर प्रेजेंट हियर एंड वन ऑफ द मिनरल इज आयरन, इट इज प्रेजेंट इन अ सॉइल, ठीक है, it reacts with water and oxygen, ठीक है, and it forms iron oxide, ठीक है, so that is also present here, and also many animals die, है ना, बहुत से एनिमल्स मरते हैं, फॉरेस्ट जो है जमीन के अंदर धंस जाते हैं, प्लांट धंस जाते हैं, वेयर दे गो, कहाँ जाते हैं? कुछ टाइम बाद सॉइल के अंदर चले जाते हैं। सॉइल के अंदर जब वो जाते हैं तो वो अचानक से कन्वर्ट किस में होते हैं? दे कन्वर्ट इनटू सम यूजफुल थिंग, ठीक है, एंड दैट इज डन बाय बैक्टीरिया एंड फंजाई, जो कि से ह्यूमस में, जो कि प्लांट्स जो है उनको हेल्प करते हैं न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने में, वो चीज बनाते हैं, ठीक है। अब ये चीज हमने क्यों पढ़ी है? इसलिए पढ़ी है क्योंकि सॉइल फॉर्मेशन में तीन चीजें हो रही है। व्हाट आर द थ्री थिंग्स आर हैपनिंग? सॉरी, टू थिंग्स आर हैपनिंग। फिजिकल चेंज इज हैपनिंग, क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ ब्रेक हो रहा है, ठीक है, साइज चेंज हुआ है। इन दिस इट्स केमिकल चेंज, एंड हियर ऑल्सो केमिकल चेंज। तो हम कह सकते हैं इन सॉइल फॉर्मेशन बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज टेक प्लेस, ठीक है, दोनों ही चीजें होती है।
अगर आपको कभी कोई एग्जाम्पल आ जाए जिसमें केमिकल और फिजिकल चेंज दोनों पूछा हो कि ऐसा कोई एग्जाम्पल दो जिसमें दोनों चीजें होती है, सो यू कैन से सॉइल फॉर्मेशन। ठीक है, सॉइल फॉर्मेशन में दोनों चीजें हो रही है, फिजिकल भी एंड केमिकल भी। ठीक है, इज इट राइट? Yes. So now coming to worksheet, ठीक है, मॉड्यूल 2, क्वेश्चन नंबर 1, मार्क द फॉलोइंग एज फिजिकल और केमिकल और रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। बिफोर दिस, इसी के सामने यहाँ पर एक चीज लिखो, राइट डाउन वन थिंग, ऑल लिखो, all chemical changes are irreversible. All chemical changes are irreversible. Irreversible मतलब हम उनको वापस ओरिजिनल स्टेट पे नहीं लेके आ सकते, irreversible. Whereas क्या लाइन मैंने बोली है? ऑल केमिकल चेंजेस आर इरिवर्सिबल whereas physical changes can be reversible और irreversible। तो फिजिकल वाले रिवर्सिबल भी हो सकते हैं, इरिवर्सिबल भी हो सकते हैं, लेकिन केमिकल वाले इरिवर्सिबल ही होते हैं। तो वी कैन से केमिकल चेंज irreversible, physical change can be irreversible और रिवर्सिबल। ठीक है, अब नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 को करते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट इज स्टिचिंग क्लोथ टू अ शर्ट। अगर हम शर्ट बनाते हैं कपड़ा लेके, ठीक है, इज अ फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज? फिजिकल। अब ये जो है रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल है? क्या जो शर्ट बनाई है उससे वापस वैसा कपड़ा बना सकते हैं ओरिजिनल वाला? काट दिया, अब कैसे होगा? सो इट्स इरिवर्सिबल। ठीक है, इरिवर्सिबल। मैं इसको ऐसे लिख रही हूँ बेटा, और पी फॉर फिजिकल। कमिंग टू सेकेंड, ट्विस्टिंग ऑफ स्ट्रेट स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को ही लो और उसको ट्विस्ट करो ऐसे ऐसे ऐसे, तो इज इट फिजिकल और केमिकल चेंज? इट इज रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल? रिवर्सिबल, क्योंकि हम अगर उसको ट्विस्टिंग जो जैसे कि उसको उल्टा कर देंगे तो वापस सीधा हो जाएगा, है ना? मेकिंग इडली फ्रॉम ए बैटर, इडली बना रहे हो, इज इट रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल? तो जब भी हमारे पास केमिकल आ जाए बिना सोचे इरिवर्सिबल लिख दो। ठीक है, कमिंग टू फोर्थ, डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर, इज इट फिजिकल और केमिकल? केमिकल किसने बोला? केमिकल? किसने केमिकल बोला? अभी मैंने सॉल्ट वाला बताया था कि जो स्पेसेस है उनके बीच में वो फिक्स होते हैं, दे टेक स्पेस देयर। केमिकल कैसे हुआ? क्या कलर चेंज होता है पानी का नमक और चीनी डालने से? ना उसका कलर चेंज हो रहा है, ना उसका टेक्सचर चेंज हो रहा है, ना ही उसका जो है अगर हम कहें कि उसकी स्टेट चेंज हो रही है। सो हाउ इट इज केमिकल चेंज? कोई नई चीज तो बन नहीं रही उसकी। यस, so it is physical change and it can be reversed also. इसको भी हम रिवर्स कर सकते हैं। You have learnt in your class 6 also. Coming to ripening of fruits. Yes, ripening of fruits. केमिकल चेंज। एक बार आम पक गया उसको वापस कच्चा आम बना के चटनी नहीं बना सकते। ठीक है, मैम फिफ्थ इज लेफ्ट है। मैम फिफ्थ इज लेफ्ट। वेट, मैंने 6 कर दिया, तो चलो 5th अब करते हैं। 5th इज ड्राइंग वाटर फ्रॉम अ वेल।
किसी ने वैसे कभी किया ये चीज? पानी निकाला है कुएं से किसी ने? हम लोग देखा है निकालते हुए किसी को? मैम यस। ठीक है ना, फिर ठीक है। मैंने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हो तो किसी ने निकाला होगा शायद से, है कोई काम करके आया होगा ये। चलो, कमिंग टू द 7th one, boiling water in open pan. Yes, is it physical or chemical change? बॉइल कर रहे हो पानी को। मैम फिजिकल। Yes, it's physical change क्योंकि क्या हो रहा है, लिक्विड है, it is changing into gaseous state, so it's a state conversion only, state change हो रही है। वाटर से रिलेटेड बेटा जब आता है कि वो लिक्विड से गैस बन रहा है, गैस से या कुछ बन रहा है, so it's a physical change, उसका कुछ चेंज नहीं हो रहा, उसका कोई कंपोजिशन, कोई नई चीज नहीं बना रहा, it's only its state is changing। जैसे अभी आपने कॉटन के क्लोथ पहने इन समर सीजन, बट जैसे विंटर आएगी आप जो है वुलन पहन लोगे, लेकिन रहोगे तो आप ही ना। ऐसा तो नहीं ना गीतिका कुछ और बन जाएगी, अमन कुछ और बन जाएगा, सानवी कुछ और बन जाएगी, वही रहोगे ना। इट्स ओनली यू आर वेयरिंग समथिंग डिफरेंट, ठीक है। So coming to the 7th, it is physical and it is reversible change. Coming to 8th one, रोलिंग अप अ मैट। जो मैट है, चटाई को ऐसे रोल करके आप रख रहे हो, फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज एंड इट इज रिवर्सिबल, ठीक है। नाउ कमिंग टू 9th वन, ग्राइंडिंग व्हीट ग्रेन्स टू फ्लावर। यस, ग्राइंडिंग व्हीट grains to flour. Chemical. Is it chemical change? Oh really? Is it really chemical change? कुछ और नया प्रोडक्ट बन गया? ध्यान से सुनो एवरीवन, नाउ पे अटेंशन। ये क्यों केमिकल चेंज नहीं है? Why it is not chemical change? आपने कुछ इसमें डाला नहीं, यू हैवंट एडेड एनीथिंग, कुछ नहीं ऐड किया, आपने कुछ भी नहीं ऐड किया, यू जस्ट रिड्यूस द साइज। यहाँ पर सिर्फ साइज चेंज हुआ है। ग्रेन्स, जो ग्रेन था वो ऐसा था, जो फ्लावर है वो पाउडर फॉर्म में है। इट इज द ओनली चेंज। यस और नो? यस, यस और नो? यस यस ना? तो दिस इज हाउ इट इज, दैट इज व्हाई इट इज अ फिजिकल चेंज, सिर्फ अपीयरेंस चेंज हुई है। बट इज इट रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल? अब आटे से वापस गेहूं बना सकते हो? नहीं, वी कैन नॉट डू दैट। सो इट्स फिजिकल बट इरिवर्सिबल, इट इज फिजिकल बट इरिवर्सिबल। कमिंग टू 10th, फॉर्मिंग ऑफ सॉइल फ्रॉम रॉक्स। Chemical change. केमिकल चेंज। अच्छा, अभी पढ़ा, अभी भूल गए सारा है। Physical. अच्छा, अब मैंने ये बोल दिया तो फिजिकल हो गया, सब गलत। Physical and chemical. फिजिकल एंड केमिकल, एंड इट इज रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल? इरिवर्सिबल। कमिंग टू 11th वन, कर्डलिंग ऑफ मिल्क, दही जमाना। अब दही से वापस दूध बन जाता है? नाउ कमिंग टू 12, फ्रीजिंग ऑफ वाटर टू आइस। Irreversible, reversible? रिवर्सिबल। Now last is 13th. It's formation of clouds. फिजिकल। That's right, it's physical क्योंकि पानी ही इवेपोरेट होके क्लाउड बनाता है। और क्या ये रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल है? रिवर्सिबल क्योंकि पानी जो गया वापस भी तो आ रहा है ना, इट इज कमिंग बैक, सो इट इज रिवर्सिबल। दैट्स राइट। सो आई होप सबका ये साथ साथ हो गया है, ऑल हैव नोटेड डाउन? चलो अब सेकंड केस पे आते हैं। इट्स अ वेरी
गुड स्टोरी, ध्यान से सुनो, ठीक है? सुनो नहीं, देखो भी और लिखना भी है। पृथ्वी इज प्रिपेयरिंग अ मील इन द किचन, ठीक है? ही चॉप्स वेजिटेबल्स, peels potatoes and cut fruits. So is it physical change or chemical change? Physical change. So here in the second we can say first वाला जो blank है it is a physical change क्योंकि अभी उसने सिर्फ उनका साइज रिड्यूस किया है, उसका छिलका छीला है, नथिंग इज डन हियर। कमिंग टू द कंटिन्यू करते हैं इसको। ही कलेक्ट्स द सीड्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल पील्स इनटू अ क्ले पॉट। तो अब ये क्या है? इज इट फिजिकल और केमिकल? Physical. इट्स अगेन फिजिकल क्योंकि अभी उसने लेके सिर्फ उसको गमले में डाला है, ठीक है? इट्स अ फिजिकल चेंज होगी। Next, the fruits, vegetable peels and other materials begin to decompose due to the action of bacteria and fungi forming compost. Is this physical or chemical change? Chemical. Yes. अब वो क्या बन रहे हैं? खाद बनने लगे हैं। So now they are changing into something else with the action of bacteria and fungi. Coming, he decides to plant seed in the compost and water them regularly. After a few days, he notices that the seeds begin to germinate and small plants to grow, eventually blooming into colorful flowers. Is it physical or chemical change? Chemical change. Chemical change. So here we can say क्योंकि अब वो कली से, फूल की कली से क्या बन रहे हैं? फूल बन रहे हैं, ठीक है? So it's a chemical change. His efforts are appreciated by all his family members. So सबने इसको लिख लिया है? Yes. Coming to the third, some changes are given here. Write physical changes in the area marked A and chemical changes in the area marked B. Enter the changes which are both physical and chemical in area marked C. So let's move ahead. हम इसको खुद बनाते हैं। मैडम सेट टू डिस्कशन। So now this is what it is given here, है ना? ये दे रखा है, ऐसे ही बना रखा है। So now it is A, ये A है, it is B and it is C, जहां पर दोनों मिक्स हो रहे हैं। So A means physical change, B मतलब chemical change और C जिसमें दोनों हो रहे हैं, physical and chemical both. So coming with the first process of burning of candle. So it means क्योंकि यहाँ पर burning बोला है, it's not melting, तो burning में क्या होता है? When we burn candle, तो क्या क्या चीजें होती है बेटा? हम इसको सी में ही डालेंगे क्योंकि इसमें दो चीजें हो रही है। वन इज जो स्मोक है वो फॉर्म हो रहा है, इट इज ड्यू टू केमिकल चेंज, और वैक्स जो है मेल्ट हो रही है, इट इज फिजिकल चेंज। सो वी पुट फर्स्ट वन, यहाँ पर हम फर्स्ट को डाल देते हैं। सब साथ साथ करो। टेयरिंग अ पेपर, पेपर को फाड़ना। कमिंग टू रस्टिंग, coming to curdling of milk, ripening of fruits. Yes, ripening of fruits. सब कंफ्यूज हो रहे हो, सी मतलब केमिकल नहीं है, बी मतलब यहाँ पर केमिकल है। कमिंग टू मेल्टिंग ऑफ आइस,
मैग्नीशियम, मैग्नीशियम रिबन वाला आपने किया ना? Yes, so it is chemical change. Now coming to mixing baking soda with vinegar. And the last is formation of soil. C, दोनों ही चीजें होती है. So everyone do it like this. सब इसको ऐसे करो. Is it done? Yes. So now in the next we have experiment दे रखा है A B C D, ठीक है? And ask in which case did lime water turn milky and why? So B section से Sanvi is there. Sanvi is there. Yes, Sanvi is there, beta. Yes. So Sanvi, come with your worksheet, beta. So here we have 4 experimental setup, ठीक है? 4 सेटअप है हमारे पास और सभी में ऐसे ही 2 टेस्ट ट्यूब्स और ऐसे जो है हमने उसके साथ स्मॉल पाइप लगा रखी है, स्ट्रॉ समझ लो, ठीक है? सो व्हाट वी आर फाइंडिंग आउट कि इनमें से किस में जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई है एंड दैट टर्न्स द लाइम वाटर इनटू मिल्की, ठीक है? सो सेकंड वाली में सभी में लाइम वाटर है. In every experiment, this is common. Lime water is common. But the thing that is not common is in test tube 1. So in first test tube 1 में हमारे पास vinegar plus baking soda है. We have baking soda here. In the second here, sorry, in the C, we have vinegar and common salt. यानी घर में जो नमक हम यूज करते हैं, that. Now coming to this D, we have lemon juice plus vinegar. And the last D, we have lemon juice plus baking soda. So what do you think, beta? किसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड निकले? In which reaction? A, B, C, D. Yes. मम्मी In A. Only in the A. जरा और देखो किसी में निकल सकती है. Yes, you're right. In the A, because vinegar is what? It's acid. Baking soda is what? It's base. ठीक है? So when they react, they form salt. ठीक है? जब ये react होते हैं, अगर आपको last time में याद होगा, so vinegar is what? CH3COOH. When it reacts with baking soda, that is NaHCO3. So what they give? They give sodium acetate. They release carbon dioxide also. इसके अलावा भी है, अभी हम कार्बन डाइऑक्साइड पे फोकस करते हैं. So carbon dioxide they release. हमने last time ये reactions किए थे. Everyone, please go through these reaction daily. तभी याद होंगे, otherwise नहीं. So this is carbon dioxide. So yes, here carbon dioxide released. ठीक है? And this carbon dioxide turn this milky. अब milky क्यों किया? Why lime water turned milky? मैम because calcium changes to carbon dioxide. No. Calcium is not changing into carbon dioxide. Here, lime water का क्या फॉर्मूला होता है? It's calcium hydroxide. It's calcium hydroxide. When calcium hydroxide reacts with carbon dioxide,
It form calcium carbonate. इसको लिखो, it's calcium carbonate. And this calcium carbonate is partially dissolved or partially soluble in water. मतलब ये पूरी तरह से पानी में डिसॉल्व नहीं होता, and that's why it gives that milky color. ठीक है, क्योंकि दिस इज लाइम वाटर. इसको लिखो बेटा, इसी रिएक्शन जो आप कर रहे हो उसी के साथ लिखो, इट्स लाइम वाटर. और ये कैल्शियम कार्बोनेट, जिसकी वजह से वो मिल्की कलर आता है, इसको सब लिखो बेटा, इट्स कैल्शियम कार्बोनेट. ठीक है, अब इसके अलावा और किसी रिएक्शन में आपको लग रहा है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? नो. ओके, सो हियर बोथ आर एसिड. लेमन जूस भी एसिड है, विनेगर भी एसिड है, तो रिएक्शन नहीं, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं. हियर विनेगर इज एसिड, कॉमन सॉल्ट इज न्यूट्रल. ठीक है, कमिंग टू दिस, lemon juice is acid, it's acid, and this is again base. So here again carbon dioxide will release. ठीक है, so answer is A and D. ठीक है, और इसका आंसर is this equation. Go बेटा, sit बेटा, that's good. So इसी से रिलेटेड है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. नेम द केमिकल रिएक्शन which is used for testing presence of carbon dioxide. So which reaction can we use? Yes. Yes, reaction between, question number क्या है? It's 5. So reaction between, we can say reaction between Lime and vinegar and baking soda. yes, reaction between lime water plus कार्बन डाइऑक्साइड. कंफर्म्स कि कार्बन डाइऑक्साइड है या नहीं है. तो आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई इन द फॉलोइंग इक्वेशन. क्या होगा एक्स एंड वाई? एक्स प्लस कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्स वाई प्लस वाटर. क्या है ये? अभी हमने किया है, वी हैव डन दिस. So here I am going to ask Sahib Singh Nagra, C section. Sahib Singh. Yes. And yes. Yes बेटा, आंसर बताओ x क्या है? What is x here? अभी हमने किया है, this reaction we have done. कार्बन डाइऑक्साइड किससे रिएक्ट करे? इससे पता लगता है. हाँ, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड. यस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. उसको क्या कहते हैं बेटा? नॉर्मल वे में हम इसे क्या कहते हैं? लाइम वाटर, चूने वाला पानी. अभी बुलाई जा रहे बार बार. इट्स अ लाइम वाटर. अब ये बनाएगा क्या? y क्या होगा? व्हाट इज y हियर? कैल्शियम कार्बोक्साइड. कार्बोनेट, कार्बोनेट. इट्स कैल्शियम कार्बोनेट. ठीक है, इट्स कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि इसको मिल्की कलर देगा और जिससे हमें कंफर्म हो जाएगा कि गैस दैट इज रिलीज्ड इज कार्बन डाइऑक्साइड. ओके बेटा, दैट्स गुड. सिट डाउन. वेल डन, दैट्स गुड. नाउ कमिंग टू लास्ट पार्ट इसका. ठीक है, कमिंग टू द लास्ट पार्ट. See, why the white precipitate of calcium carbonate is formed in the above reaction. क्यों बने white precipitate? मतलब जब हमने टेस्ट ट्यूब थी, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड डाला. ओके, कार्बन डाइऑक्साइड जब गया, सो वाई, जो कि पहले एकदम ट्रांसपेरेंट था, वाई इट इज बिट टर्बिड. मतलब ऐसे ऐसे उसमें से हमें दाने ऐसे क्यों दिखे? वाई इट इज लाइक दिस? We know it is because of calcium carbonate. We know the answer. But why?
क्यों कैल्शियम कार्बोनेट को हमें ऐसे इजीली देख पा रहे हैं? क्यों ये मिल्की कर रहा है इसको? व्हाट इज द रीजन? यस, व्हाट इज द रीजन ऑफ दिस बेटा? व्हाई लाइम वाटर टर्न मिल्की? क्यों ये मिल्की हो गया? इसका आंसर अभी थोड़ी देर पहले लिखा है, तो थोड़ा सा सब अपना दिमाग भी खोलो। क्योंकि ये पार्शली डिसॉल्व होता है, इट इज पार्शली डिसॉल्व इन वाटर, पूरी तरह इसमें डिसॉल्व नहीं होता। तो इस वजह से इसके दाने 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 हमें दिखते हैं, जिसकी वजह से हमें जो लाइम वाटर पहले ट्रांसपेरेंट था वो अब थोड़ा दूध जैसा दिखता है। इज इट राइट? यस, Yes. okay, so now we have done this. और कोई बेटा किसी को कोई डाउट है in this chapter, do ask me. Physical and chemical change, because we have done this chapter now, it's done from my side. If you have any doubt, do ask me. कोई doubt, कोई something that you want to ask related to this chapter, do come. Yes, कोई डाउट नहीं है? Everything is clear? Acha, that's really nice. That's really nice. So which chapter is going on right now? Motion and time. Okay. So इससे पहले कौन सा physical and chemical change ही था? Okay. So now it's motion and time. Okay, beta. ठीक है. So now your math class is going to start in 2 minutes. Okay. So bye students. Take care. Thank you teachers. Today we are going to do something different, which is new for you in the 7th class, that is exponents and powers. Have you heard this name? Yes. Okay, class में किया है आपने? Fine. So let us write down few things. First of all, write down the heading, powers and exponents, या फिर exponents and powers, whatever. Okay. So you should know the important names जो इसमें यूज हो रहे हैं. बहुत छोटा सा चैप्टर है, only few things to learn. Okay, so you should know कि whenever we have 2 into 2 into 2 into 2 4 times, when you multiply 2 4 times, what do you write like this? In short form, you write it as 2 raised to power 4. Oh, you know it. Yes, hands down. And when we have minus 2 into minus 2 into minus 2, अभी मुझे ब्रैकेट लगानी पड़ रही है because ये नेगेटिव साइन मैथ्स में मैथ्स में कभी भी 2 साइंस इकट्ठे नहीं आते. We cannot write plus and minus together. कुछ हमें सेपरेशन करनी पड़ती है, उनको ब्रैकेट से सेपरेट करना पड़ता है. तो we cannot write like this कि 2 into 5 minus 5 ऑड लगता है ना, ऐसे देखा है कभी आपने 2 साइंस इकट्ठे? No, they never come together like this. Okay, so whenever we have minus 2, अब आप you're in 7th class, you have read about integers, तो आपको ये पता है कि जो चीजें हमने पॉजिटिव नंबर के लिए यूज की, सेम थिंग्स वी यूज फॉर नेगेटिव नंबर्स ऑल्सो. पूरी नंबर लाइन के ऊपर आपके पास जीरो भी है, पॉजिटिव साइन भी है, नेगेटिव साइन भी है. तो जो चीजें आपने पॉजिटिव होल नंबर्स के लिए किया, आपने इधर नेचुरल नंबर्स के लिए किया, सेम थिंग सेम रूल हमारे नेगेटिव नंबर्स के लिए भी अप्लाई होते हैं. राइट? तो सेम थिंग, आपने बोला 2 raised to power 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? minus 2 raised to power 4. राइट? पावर, इसको बोलने का तरीका है, काफी स्टूडेंट्स इसको बोलते हैं 2 4, कोई बोलते हैं 2 4. उनको पूछो ना कि प्लीज राइट डाउन, टेल मी द आंसर, they say 2 4. Don't speak like this. Say 2 raised to power 4. You can write it down. 2 raised to power 2 power 4. 2 raised to power 4. बोलने में अपने इसको वैसे ही बोलना, राइट? अभी बोल तो लिया आपने, चलो. तो 2 जो है, जो नीचे नंबर है, उसको हम बोलते हैं बेस, एंड 4 वी कॉल इट एज पावर.
या फिर एक्सपोनेंट। पावर को एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। और पावर को हम कैसे लिखते हैं? कॉर्नर में लिखते हैं, राइट कॉर्नर में। ओके, मिस्टेक क्या करते हैं बच्चे? चैप्टर बहुत सिंपल है, चैप्टर की कोई बात नहीं है। दे राइट लाइक दिस। कई बार 2 के ऊपर 4 लिख देते हैं, कई बार इसको 4 लेफ्ट साइड में लिख देते हैं, कई बच्चे इसको 2 4 ऐसे लिख देते हैं। ओके, तो यू शुड नो द वे ऑफ राइटिंग कि 2 हमेशा हमारा नीचे है और 4 जो पावर हम लिख रहे हैं उसको हमने राइट कॉर्नर पे लिखना है। टेक केयर। ओके बेटा, चैप्टर ये सिंपल, आपने क्लास में भी थोड़ा बहुत किया हुआ है, सो आपको मुश्किल नहीं लगेगा ये। ओके, थोड़ी बहुत बातों को आपको नहीं ध्यान देना है। सिमिलरली जैसे आपने 1/2 किया, 1/2 रेज टू पावर अगर 4 किया तो क्या आ जाएगा? 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। इसको फिर से आप 4 से 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हो और इसका आंसर निकाल लेते हो। राइट, अब पूरे चैप्टर में आपके पास okay, one thing more I want to tell you. 2 raised to power अगर आपके पास 4 है या फिर 2 raised to power -2 raised to power 4 and -2 raised to power 5। प्लीज इनके आंसर्स निकालो। डू इट। ये दोनों लिखो, -2 raised to power 4 and -2 raised to power 5। प्लीज फाइंड इट। अब आपको पता तो चल गया है कि पावर का मतलब होता है 4 टाइम्स उसको मल्टीप्लाई करना। वेरी गुड। Find out -2 raised to power 4 and -2 raised to power 5. Okay. 7C section, Khushi, Yes. please tell me. What is the answer of this one? Upar? -2 into in bracket -2 into in bracket -2 into in bracket -2. 4 times किया आपने। आपने उसको मल्टीप्लाई भी किया क्या? Yes. Yes. What is coming? 16 -16. Okay. And इसको किया? Okay. -16 किस किस का आ रहा है? हाथ खड़ा करो। Okay. Okay. Hands down. नीचे वाला -2 raised to power 5. -32. -32. Now everybody look straight. Everybody look straight. आपके पास एक ये क्वेश्चन था, एक ये क्वेश्चन था। तो फर्स्ट वाला आपने कैसे किया? -2 इंटू -2 ऐसे किया आपने, इंटू -2 इंटू -2। ठीक है, इंटू का मैंने साइन बीच में नहीं लगाया, तो ब्रैकेट से ही आपको पता चल रहा है कि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो प्लीज रिमेंबर, जब आप नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हो यू हैव टू मल्टीप्लाई द साइंस ऑल्सो। ठीक है, हाउ? माइनस इंटू माइनस इज प्लस। ठीक है, प्लस इंटू माइनस इज माइनस एंड माइनस इंटू माइनस अगेन इट इज प्लस। इंटीजर के चैप्टर में किया था आपने 6th में। किया आपने कि साइंस को कैसे आप मल्टीप्लाई करते हो। 2 नेगेटिव है तो प्लस आ जाएगा, प्लस और माइनस है तो माइनस आ जाएगा, माइनस और प्लस है तो माइनस आ जाएगा। ये रूल आपने किया हुआ है। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? 16 या फिर -16? प्लस 16। दोबारा बोलो। 16 plus 16 you mean to say. No negative sign. ओके, यहाँ पे आपने क्या किया? सेकेंड क्वेश्चन में क्या किया था? 5 टाइम्स। आपको दिख रहा है कि ये 5 टाइम्स हो रहा है, तो आपके पास प्लस के बाद एक और माइनस आ रहा है, तो आंसर आपके पास -32 होना चाहिए या +32? -32। ओके, तो व्हाट इज द रूल? अब आपके पास एक रूल बन चुका है। आप हमेशा इसको
ऐसे मल्टीप्लाई करके एक्सपैंड करके नहीं लिखोगे। मान लो आपके पास आ गया कि -12 रेज टू पावर -7 है, तो ऐसे नहीं कि उसको, सॉरी +7 है, तो आपने इसको -12 इंटू -12 इंटू -12 करते जाओगे 7 टाइम्स। नो, आपको इसको एक रूल बना लेना है कि अगर हमारे पास इवन पावर होगी तो हम क्या करेंगे, ऑड पावर होगी तो क्या करेंगे। ओके, राइट डाउन रूल्स लिखो। वी आर गोइंग टू राइट फ्यू रूल्स। फर्स्ट रूल आई वांट टू टेल यू अबाउट दिस ओनली, कि जब आपके पास a रेज टू पावर m है, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, a को कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे, m टाइम्स। ओके, ये तो पता ही है आपको। सेकेंड रूल, -a रेज टू पावर m है, तो आप -a को मल्टीप्लाई कर रहे हो, -a इंटू -a इंटू -a। अभी हम प्रोडक्ट का साइन, बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन मैंने नहीं लगाया है यहाँ पे। यू आर इन 7th क्लास, यू हैव टू लर्न इट कि हम मल्टीप्लीकेशन के साइन को स्किप कर सकते हैं जब हम ब्रैकेट डाल रहे हैं। ब्रैकेट का मतलब ही ये है कि दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ओके, हाउ मेनी टाइम्स, m टाइम्स। कोई भी नंबर है, जितनी उसकी पावर है उतनी बार वो मल्टीप्लाई हो रहा है। आपने तो यही सीखा है। बट प्रॉब्लम ये है कि अगर हमारे पास इवन पावर है तो क्या करेंगे, ऑड पावर है तो क्या करेंगे। नाउ वी आर राइटिंग, जो हमारे सेकेंड रूल जो हमने लिखा है उसके हम 2 पार्ट्स करेंगे। ठीक है, इफ m इज इवन नंबर, शॉर्ट फॉर्म में लिखो, इफ m इज इवन नंबर। सपोज कर लो इवन नंबर है, तो हम क्या करेंगे, -a रेज टू पावर m जो होगा वो क्या बनेगा, पॉजिटिव बन जाएगा। -a रेज टू पावर m जो है वो एक एग्जाम्पल ऑल्सो कि जब हमारे पास इवन पावर है तो आंसर हमारा पॉजिटिव में आता है। ओके, एंड बी पार्ट, if m is odd number, कर लो यहाँ पे, then -a raised to power m -a raised to power m जो होगा हमारा वो नेगेटिव बन जाएगा, -a raised to power m हमारा नेगेटिव में आंसर आ जाएगा।
We will write the example also. For example, -2 raised to power 5, अभी अभी आपने किया था, is equal to minus of 2 raised to power 5, that is equal to minus of 32. Think and write, okay? ऐसे नहीं कि सिर्फ नोटबुक में आपने भरना ही है उसको, सोचो, साथ साथ में उसको लर्न करो. कोई डाउट है, प्लीज स्टैंड एंड आस्क मी. Okay, this is very very important to see the power. अगर पॉजिटिव पावर है, इवन पावर है, तो आपका आंसर पॉजिटिव में आएगा. ऑड पावर है तो आंसर आपका नेगेटिव में आएगा. Always, not only for 2, it could be for any number. जब भी आपके पास नेगेटिव साइन बेस में आएगा तो आपको ध्यान से ये करना है. ये चीजें आपकी केयरफुली करने वाली हैं. अदरवाइज जो आपकी बेसिक रूल्स हैं इस चैप्टर में वो तो आपको पता ही है, वो भी अभी हम लिखेंगे इसके बाद. ये बहुत इंपॉर्टेंट था आपका रूल. ठीक है, एनीथिंग यू वांट टू आस्क बेटा? एवरीबॉडी इज क्लियर अबाउट दिस? Yes. Yes, very good. Now write down third rule. Third rule is a raised to power m dot a raised to power n is equal to a raised to power m plus n. ये रूल हमने कब लगाया? When base is same. When base is same. जब भी आप देखोगे कि बेस सेम है टू नंबर्स का, उनकी पावर को प्लस कर दो. एग्जाम्पल बताओ. यू ओनली टेल मी एग्जाम्पल. आपने किया हुआ है ना थोड़ा बहुत इसको? ओके. बी सेक्शन, नरेश कुमार, प्लीज गिव मी वन एग्जाम्पल ऑफ दिस रूल. अपनी मर्जी से कोई बना के बताओ. छोटे नंबर ले लो. हाँ जी बेटे, ये मल्टीप्लीकेशन है, बीच में डॉट है ना, दिस इज मल्टीप्लीकेशन. अब आप 7th में हो. हाँ जी बेटे, कोई एग्जाम्पल बताओ अपनी मर्जी से. नरेश. ओके ओके, बैठो आप फिर. इफ यू डोंट नो, ध्यान से सुनो. आई विल कॉल यू अगेन. हाँ जी बेटे, टेल मी योर नेम बच्चे. 7th A. मैम चाहत. ओके चाहत बेटा, प्लीज टेल मी. मैम 2 raised to power 4 ओके and 2 raised to power 2. 2. ओके, क्या आना चाहिए फिर? 2 raised to power 6 answer. 2 raised to power 6. Very good. Very good. Please sit down. 4th. यहाँ पे भी आपको दिख रहा है ऊपर एग्जांपल में 2 and 2 बेसिस सेम था, तो हमने उनको पावर्स को ऐड कर दिया. राइट. नाउ इफ वी हैव a raised to power m upon a raised to power n, or it could be like this, a raised to power m divided by a raised to power n. कभी कभी आप क्वेश्चन में इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में देखोगे, कभी कभी इसको डिवीजन के साइन में ऐसे देखोगे. They have the same meaning, you know it. डिवीजन को आप एक ऐसे फ्रैक्शन की तरह रिप्रेजेंट करते हो, राइट? तो इसका रूल है हमारे पास, बेस सेम है, पावर हमारे पास माइनस हो जाएगी. ओके, एंड यहाँ पे भी हमारे पास सेम चीज आ रही है कि जब हमारे पास बेस सेम होता है और वो डिवाइड हो रहे हैं तो हम पावर्स को माइनस कर देते हैं. ओके, बी रेडी फॉर द एग्जाम्पल. Example, A section, Amrit Singh. Amrit brother, come here. Ma'am 3. हाँ जी.
मैम 3 पावर 9, 3 raised to power 9, okay, 3 raised to power 6, upon 3 raised to power 6. तो क्या आना चाहिए यहाँ पे? मैम 3 raised to power 3, 3 raised to power 3. You have subtracted it. Very good. Very good. Sit down. बेस सेम था, हमने दोनों की पावर्स को माइनस कर दिया। तो आपको हर एक क्वेश्चन में दो चीजें देखनी पड़ेंगी ध्यान से कि क्या उनके बेस सेम है, और दूसरी चीज कि वो मल्टीप्लिकेशन का साइन है या फिर डिवीजन का साइन। मल्टीप्लिकेशन है तो पावर्स को प्लस कर दो, डिवीजन का साइन है तो माइनस कर दो। फिफ्थ वन इज हमारे पास है a रेज टू पावर m रेज टू पावर n। पावर के ऊपर एक और पावर है, फाइन। पावर के ऊपर एक और पावर है तो दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, इट इज m इंटू n। पावर हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगी। एग्जाम्पल बी सेक्शन, अंशु आ गया बेटा। मैम यस, हाँ जी बताओ बेटे, कोई एग्जाम्पल दो। मैम 2 raised to power 3, ओके, bracket या raised to power 4, रेज टू पावर 4। वेरी गुड, बहुत स्मार्टली बोला आपने, वेरी गुड। ऑल द चिल्ड्रन शुड स्पीक लाइक दिस। ठीक है, अगर आप मैथ्स आपको अच्छा लग रहा है, आप कर रहे हो, आपको समझ आ रही है सब कुछ, तो बोलना भी सीखो उसको। ओके बेटा, यू शुड स्पीक राइटली। वेरी गुड, टेल मी द आंसर, व्हाट शुड कम हियर? 2 raised to power 12, 2 raised to power 12, 3 fours are 12. Very good, sit down। Sixth one, let us do 6. A raised to power m into b raised to power m। बेस अभी डिफरेंट हो गए हैं, बेस डिफरेंट है। ओके, पावर सेम है, तो इस केस में क्या होगा? यू विल मल्टीप्लाई a इंटू बी, और ऊपर हमारी पावर जो है वो सिंगल टाइम आ जाएगी। पावर को हमने कुछ नहीं करना, इट विल बी रिटर्न वन टाइम। ओके, तो ये कब होगा? व्हेन बेस इज डिफरेंट। डिफरेंट, ओके, यू हैव टू रिमेंबर इन दिस वे। जब बेस डिफरेंट है तो उनकी पावर्स को हम पावर सेम है तो एक ही बार लिख देंगे। एग्जाम्पल, फर्स्ट बेंच 7th ए, माइक के साथ जो बॉय बैठा हुआ है। हाँ जी बता दो बेटा। मैम 2 raised to power 4, ओके, 3 raised to power 4, 3 raised to power 4। मैंने थोड़ा दूर दूर लिखा है, बीच में डॉट डाला है। डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। ओके, आंसर 6 raised to power 4। 6 raised to power 4। आपने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और आंसर हमारे पास आ गया 6 raised to power 4। वेरी गुड। अब आप थोड़ा सा मेरे को 2 और 3 से थोड़ा दूर, थोड़ा अलग से हटके एग्जांपल बताना। ओके, 2 2 2 2 2 3 3 3 3 बहुत हो गए हमारे। थोड़ा सा बड़ा नंबर लेना अभी नेक्स्ट टाइम जिसको मैं पूछूंगी। बी रेडी फॉर दैट। हमारा एक लास्ट वाला रह गया है। इट इज लाइक दिस, 7 a raised to power m by b raised to power m। डिवीजन हो रही है तो डिवीजन में भी हम सेम ही चीज अप्लाई करेंगे। a बाय b कर दिया और पावर को एक बार लिख दिया। इसमें भी आपके पास बेसिस अलग अलग थे, पावर सेम थी, तो यू डिड लाइक दिस। ओके, थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल सोचो।
आपको लोएस्ट टर्म में भी करना आता है ना, थोड़े से बड़े नंबर हो तो प्लीज ट्राई इट, रफ में लिख के देखो। सारे क्वेश्चन में हम 2 एग्जांपल्स में 2 ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं। यू आर इन बिग क्लास, थोड़े से बड़े नंबर चूज करो। सी सेक्शन, हर्षवीर, सोचा आपने कोई एग्जांपल? नोटबुक में लिख के देखो, देन टेल मी। फाइव, माइक को ठीक से पकड़ो बेटे, योर वॉइस इज नॉट क्लियर। 5 raised to power 9. ओके Ma'am, over 7 raised to power 9. ओके, तो क्या लिखोगे? Ma'am, 5 over 7 bracket. Ma'am, raised to power 9. यस, गुड। सपोज आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसमें आपके पास ये कट सकते हैं 5 और 7 आपस में, कई बार ऐसे नंबर्स आ जाते हैं कि आपस में कट सकते हैं फ्रैक्शन की तरह, ठीक है, 15/3 है या फिर 25/5 है, समथिंग लाइक दैट, तो आप उसको काट भी सकते हो ब्रैकेट में। ओके, अब ये 5 और 7 तो नहीं कटेंगे, बट आपको अगर बाई चांस कोई ऐसा नंबर आता है तो उसको फ्रैक्शन को लोएस्ट टर्म में कर लो बिफोर टेलिंग द फाइनल आंसर। ओके, let us do few questions now. These are extra questions we are doing for practice today. -4 raised to power, question number 1, write down properly, find the value of, write down, find the value of. Find the value of, first part is -1/15 raised to power 7. Let us take a small, first of all, let us take it 3. छोटी पावर पहले शुरू करते हैं, -1/15 raised to power 3. Let us take a small power first. Please solve it. Apply your law. Okay, कोई किसी की नोटबुक में नहीं देखेगा। Very good. Do it yourself. Power 7. Yeah. Very good. Do it. जिन्होंने फर्स्ट कर लिया वो सेकंड करो। ए सेक्शन, सरताज सिंह बेटे आगे आओ। Yes, sir. फर्स्ट वन, First one. फर्स्ट बेटा, फर्स्ट किया आपने? मैम कर रहे हैं। कर रहे हो? ओके ठीक है, कंटिन्यू करो करो, गुड। जिन्होंने फर्स्ट कर लिया वो सेकंड करो। अभी मैं आई विल कॉल द नेम।
कोई किसी से देखेगा नहीं, किसी को डाउट है ना मेरे से पूछ लो खड़े होके. ओके ओके. फर्स्ट वन. फर्स्ट वन. सताश कर लिया आपने? ये सेक्शन इतनी देर नहीं लगनी चाहिए बेटा. बोल पा सताश हैव यू डन? यस सर हाँ प्लीज बताओ मेरे को कितना आ रहा है. फर्स्ट का आंसर क्या आ रहा है? 1/480 1/. ओके फिर बैठ के करो इफ यू आर डूइंग. उसके आगे जो लड़का बैठा हुआ है प्लीज टेल मी बेटा, हैव यू फाउंड ए सेक्शन? सताश यू सिट डाउन. मैम यस. हाँ जी बेटा क्या आ रहा है फर्स्ट का आंसर? मैम 1/480. चेक करो, दोबारा चेक करो. आपने रफ कॉलम बनाया हुआ है सबने? अपना साइड पे रफ कॉलम बनाओ, उसको 15 को 15 से मल्टीप्लाई करो, फिर जो आंसर आएगा फिर 15 से मल्टीप्लाई करो. मैम 1/3375. 3375 ये आ रहा है आंसर आपका? मैम यस. सबका यही आ रहा है? हाथ खड़े करो, किसका ये आ रहा है? This answer is wrong. This answer is wrong. Hands down. जिन्होंने अभी अभी हाथ खड़े किए ना उनका आंसर रॉन्ग है. Now tell me और किसने क्या आंसर निकाला है? What it should be? क्या होना चाहिए? मैम माइनस. माइनस. टेक केयर. माइनस नहीं लगाया तो पूरा आंसर खत्म, पूरा आंसर 0 मार्क्स. प्लीज रिमेम्बर, इतनी बड़ी आपने कैलकुलेशन इतनी मेहनत से की है, आपका आंसर बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा इफ यू आर नॉट राइटिंग माइनस साइन. टेक केयर. पावर इज ऑड, सो माइनस का जो आंसर आएगा दैट विल बी इन माइनस ओनली. वेरी गुड. नेक्स्ट वन. Yes. B section. Aman Kumar. B section. अमन सेकंड का आंसर क्या आ रहा है बेटा? मैम -81/256. 256. ये माइनस में आ रहा है आपका? मैम यस. फाइव. माइनस क्या सोच के लिखा आपने? और किस किसने माइनस लिखा है आगे? रेज योर हैंड. ओके गुड. माइनस नहीं आएगा बिकॉज पावर इज ऑड. ये पॉजिटिव में आंसर आपका आएगा. ठीक करो बेटे इसको बैठ के. सिट डाउन. प्लीज सी हियर. यहाँ पे पावर इज ऑड. दिस इज ऑड नंबर एंड दिस इज इवन. 4 इवन नंबर है. माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस. चैप्टर इज नॉट डिफिकल्ट. आपको यही तो बातों का ध्यान देना है, छोटी छोटी बातों का. यू आर डूइंग लॉट ऑफ हार्ड वर्क इन मल्टीप्लीकेशन. ठीक है, बड़ी बड़ी पावर आती है, आप उनको मल्टीप्लाई करके मेहनत से करते हो. देन लुक फॉर द साइन ऑल्सो. पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा. ओके, बी वेरी केयरफुल. राइट, नेक्स्ट वन.
6a raised to power 4. 6a raised to power 4. 6a इकट्ठा है. Okay, I can see hand. पीछे C section. Corner boy. Yes, come forward. And the answer is 1296. बस यही है. बस इतना सा है. No. Firstly, 6a multiplied by 6a multiplied by 6a multiplied by 6a. हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है. लेकिन फाइनल आंसर क्या है आपका? 1296. A. ए क्या? पहला ये आएगा. Yes. ए की पावर भी 4 आएगी बेटा. इट विल बी लाइक दिस. ओके, sit down, please correct it. आपने लिखा इसको 6a into 6a into 6a into 6a. 4 बार आपने इसको लिखा. जब आप 4 बार इसको कर रहे हो तो आपके पास 6 into 6 into 6 4 बार मल्टीप्लाई करके 1296 आ गया. जब a को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 4 टाइम्स तो आप क्या कर रहे हो? पावर को प्लस कर रहे हो. अपना लॉ लगाओ. 1 plus 2 plus 3 plus 4 a raised to power 4. वेरिएबल जो है उनकी पावर्स को आप प्लस कर रहे हो क्योंकि बेस इज सेम. a into a into a into a will be a raised to power 4. Okay, so this is the final answer. Take care. We will be doing more question next time. Okay. Thank you, ma'am. Bye bye. Bye, ma'am.